میرے خیال میں یہ کمرہ تھوڑا سا ریزنیبل سا ہو ہی گیا. میرے خیال میں تو آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی کمرہ جتنا چھوٹا ہوگا سنیا اتنی چیزیں کم پھیلائے گی. معافی چاہتی ہوں، میری صلاحیتوں پہ کوئی شک مت کیا کرے. مجھے افسوس ہوتا ہے، میں اپنے جوہر ہر جگہ دکھا سکتی ہوں، کمرہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کیا فرق پڑتا ہے. 100% کریکٹ سنیا احمد. میری جان تم فکر ہی نہ کرو، میں تم سے زیادہ آندھی طوفان ہوں. میری تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چیزیں خود بخود بکھر کیسے جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. آنی اب آپ اس کو انکریج مت کریں. ویسے بھی صبح تک ایسے لگے جیسے یہاں پہ گھمسان کی جنگ ہوئی ہے. یہاں سے وہاں تک چیزیں مردہ اور زخمی حالت میں پڑی ہوئی آپ کو ملیں گی، اور آپ سوچتی رہ جائیں گی کہ سنیا یہ ساری چیزیں محلے سے لے کر آئی ہے ادھار پھیلانے کے لیے. ویری فنی. تم فکر نہ کرو، بس ایسا کرو تم دونوں ہاتھ منہ دھو لو، میں اتنے میں اچھی سی گرم چائے بناؤں. میں کہتا ہوں نا یہ کیا میرا ضروری ہے کہ میں سامان اس میں کیا حرج ہے؟ لیجیے حضرات، میچ شروع. آسمان کے نیچے سوں گی؟ ارے مجھے کیا پتا آسمان کے نیچے کہ زمین کے نیچے. توبہ توبہ استغفار. میری جان سے دور دشمنوں کا منہ کالا. آئے کہ تمہاری شکل کی طرح تمہاری زبان بھی تو کالی نہیں ہے. میرا خون بہت ہلکا ہے، مجھے بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے. گڈ شاٹ بیبی. آئی بے زوبی بیٹا یہ تو بتاؤ یہ کیا چرگا پال رکھا ہے تم نے؟ ون لو. تم چپ کرو سنیا. بیوی بتائیے تو ہوا کیا ہے؟ جی بی بی کہہ رہی ہے. خبردار مجھے بی بی کہا. آئے مجھ سے چھوٹے بن رہے ہیں ننھے کاکے سے. نذیرہ بی بی کہتے ہوئے تمہاری زبان پہ موچ آتی ہے کیا؟ سروس چینج. بیوی کیا کرتی ہیں آپ؟ آئے چپ کرو بیٹا. تقدیر کی مار تو کھا لی میں نے چپ کر کے. کچھ کہا میں نے، لیکن انسانوں کی اور خاص طور پہ ایسے انسانوں کی مار نہیں کھاؤں گی کہہ دیا میں نے. مجھے بتائیے تو ہوا کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا کوارٹر خالی کر دوں، یہ رہیں گی وہاں جا کر کے. ون لو. آئی تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مرد ذات ہے کہیں بھی پڑا رہے گا. ویسے میرا نام پیارے خاں ہے آپ کی اطلاع کے لیے. آئے سچ کے جاؤں اما بابا بھی تانا دے گئے. گڈ شاٹ بیبی. کیا مطلب ہے؟ ابے نہ شکل کچھ نہیں بھائی، عقل تو دی ہوتی. جو بھی بیٹے بہت برداشت کر رہا ہوں. ہاں بیوی کتنی بری بات ہے، کیوں جھگڑ رہی ہیں آپ؟ آج تو مت جھگڑے. ارے بیٹا میں نے کبھی جھگڑا کیا ہے؟ میں کبھی جھگڑا نہیں کرتی بیٹا. تم فکر نہیں کرو. میرا کیا ہے کہیں بھی پڑی رہوں گی، باہر صحن میں اپنی چارپائی ڈال لوں گی. اچھا میں تم سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. یہ سرکار چلیے سرکار، برتن لگائیے، کام کریں. توبہ. یا اللہ، یہ دو تلواریں ایک ساتھ کیسے رہیں گی؟ روز خون خرابہ ہوگا. لیکن آنی ان کی وجہ سے زندگی میں تھوڑی سی ہلچل تو رہے گی. اور ہمارا جو حشر خراب ہوگا. خیر میں جاتی ہوں بورچی خانے میں امن کی فاختہ بن کر. I hate it. اب ٹھیک ہوں. ہم اپنی تقدیریں خود نہیں لکھتے سنیا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ لکیریں ہمیں اتنا دھوکہ دیں گی تو میں انہیں کھرچ کھرچ کے مٹا دیتی. کیا خیال ہے، لکیریں مٹانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ پتہ نہیں، کبھی کوشش نہیں کی. لیکن تم ٹھیک کہتی ہو، کوشش کرنی چاہیے. لیکن تم فکر نہ کرو، میں ایک دن ان لکیروں کو مٹا دوں گی. تم اتنی سیریس شکل مت بنایا کرو، میں ڈر جاتی ہوں، لگتا ہے کوئی اور ہے. چلو چلو سوٹ کیسز خالی کرتے ہیں. میں تھک گئی ہوں، تم کرو. بہت ذلیل ہو تم. تھینک یو ویری مچ. ایکسکیوز می سر، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. بہتر ہوا کہ مت کہو، لفظ ضائع ہوں گے کیونکہ میں سن نہیں رہا ہوں. سر یہ بہت اہم اور نازک معاملہ ہے. میرے لیے سب سے اہم اس وقت یہ کتاب ہے اور نازک معاملہ آپ ہے. سر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں مسئلے کی نوعیت کو. مجھے سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس گھر میں تمہارے وجود کی نوعیت کیوں ہے تم خود سمجھو، اور ذرا ادھر جا کے سمجھو. میں مصروف ہوں. دروازہ آہستہ بند کرنا. سر مجھے آپ سے ان خاتون کے بارے میں کچھ کہنا ہے جو ہماری کرایہ دار ہے. کیا شادی کرنی ہے؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں. نہ ہی میرا یہ خیال ہے نہ ہی وہ اس قابل ہے. گڈ، بچ گئے. پھر وہ خاتون مجھے شروع سے ہی بہت ہوشیار، چالاک اور مشکوک لگتی ہیں، مگر آپ نے میرے شبہات پر توجہ نہیں دی. میرا خیال یہ ہے کہ تمام خواتین کی تمہارے بارے میں یہی رائے ہوگی. چاہو تو تصدیق کر لو. ویسے یہ کس مخصوص خاتون کا ذکر ہے؟ انہوں نے گیسٹ ہاؤس کو مزید کرائے پر چڑھا دیا ہے. بری بات. مہمانوں سے کرایہ نہیں لینا چاہیے.
तुम समझाते क्यों नहीं हो उनको? उन्होंने आपके घर को किराए पर दे दिया है सर। मेरा घर किस खातून ने किराए पर दे दिया? कब, कैसे और क्यों? उफ, तुम्हारी गुफ्तगू अक्सर मेरी समझ से बालातर होती है, मगर ये गुफ्तगू खास तौर पर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती सर। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मेडिकल साइंस की रूह से किसी खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकती है। तुम फौरन अपना मुफस्सल तिब्बी मुआयना करवाओ। अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन आपा बेगम से रुजू करना होगा सर। ये अचानक आपा बेगम तुम्हारे ध्यान में कहां से आ गई? इसीलिए आ गई कि वो इस बात को गौर से सुनेंगी भी और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। किस बात को? इसी बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं पिछले 9 मिनट से। तो कहते क्यों नहीं हो भाई? किसने रोका है? आप सुन रहे हैं? मजबूर हूं सुनने के लिए। ये जो किराएदार खातून है, इन्होंने एनेक्सी का एक कमरा मजीद और किराए पर चढ़ा दिया है और कुछ खवातीन बमाए इसबाब के वहां पहुंच भी चुकी है। उस मुख्तसर सी जगह पर? तो तुमने मालूम क्यों नहीं किया? उनकी जुर्रत कैसे हुई सब कार्रवाई करने की? वो खातून खतरनाक हद तक ताजराना जहनीत की मालिक होगी। इधर देखो, किसने सिफारिश की थी उनकी? गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने। आप ही ने तो कहा था। खैर वो दूसरी बात है, मगर तमाम मामला तुमने उनसे तय किए थे, तुम उनसे मिले थे, बातचीत तुमने उनसे तय की थी, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है ना कि मेरी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी कहानी मुझे सुनाने के बजाय तुम उन किराएदारों का सामान उठाकर बाहर फेंक दो? ओके सर। इंतहा है कि नहीं? सब के सब गायब है। ऊपर की काम वाली लड़की ने बहाना किया कि वो गांव शादी के लिए जा रही है। एक तो यहाँ शादी पे वक्त जाया करने का बहुत रिवाज है। काम इसमें पानी डालो और उसको अच्छी तरह गूंदो। बस यूं करते हैं कि ऑमलेट बना लेते हैं और पराठे और आलू की तरकारी भी बना देते हैं। मैंने देखा है कि आटा गूंदना इतना मुश्किल काम नहीं है और पराठे भी आसान ही है। सालन पकाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं तो खुद भी सालन बना देती। बस देच की चूल्हे पे डालो, उसमें गोश्त डालो, उसमें मसाला डालो, पानी डालो, ढकना बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ ली या म्यूजिक सुन लिया या किसी दोस्त के घर मिलने चले गए। वापस आए तो सालन तैयार। आनी इसका मैं वो बना लूं पराठा। इसको गोल गोल बना के ना तल लो इसको। पता नहीं बाबा कहाँ चला गया और बीवी भी गायब है। बीवी तो अपने रिश्तेदारों के घर गई है। फिर बाबा उसको रिश्तेदारों के घर पहुंचाने गए होंगे। पता नहीं इसमें हल्दी डलती है कि नहीं डलती। डलती भी हो क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ टेढ़ा बन रहा है आनी पराठा। कोई परवाह नहीं, पराठों के इम्तिहान नहीं हो रहे। बस जरा इसे फैला लो, जरा फैला दो। हाँ जरा आके देखना, ये जरा अंडे की कुछ रंगत अजीब सी नहीं होगी? इस तरह का ऑमलेट तो पहले मैंने नहीं देखा। शायद अफ्रीका वगैरह में ऐसे ही होता होगा। आपस की बात है, खुद ही तो खाना है, क्या फर्क पड़ता है। आनी वो पराठा तवे तक नहीं पहुंच रहा है, इसको जरा उधर करो ना। कुछ दो तो चमचा दो, चमचा दो। क्या हो गया? ये ले, इससे करें जल्दी तो जरा मैंने कहा था फैला लो, तुमने फैलाया मेहनत की नहीं। मैंने। इसको आगे करें, आगे करें। धनिया उससे उठाए ना इसको। अभी कहाँ चले गए बाप। आज ये ताजा फूल है। ये क्या हुआ? अरे अरे ये चीज जो है ना तवे पर जल रही है। हाँ इसमें घी तो डालो, घी लाओ, घी डालो, घी डालो, घी डालो। ये तुम भी कुछ करो ना, तुम क्या कर रही हो? ये ले, इतना ज्यादा मत डालो। डाले 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 बस बस काफी थोड़ा सा और डाल बस बस पानी भी डाल। ये फनिया कोई आया, तुम जाओ बाहर। मेरे ख्याल में आनी के खाने की खुशबू बाहर तक चली गई है। जरूर फायर ब्रिगेड आया होगा। बको मत, जरूर जमींदार आया होगा, उसे कहना सफाई अच्छी तरह करे। सब्र करो, आ रही हूँ। यहाँ तो जमादार भी ऐसे आते हैं जैसे छापामार फौज आ गई हो। घंटी कैसे खराब हुई? रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम मतलब आप वो हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आई कांट अमेरिका में आ गई हूँ। ये कराची है मोहतरमा। ईमान से मैंने उम्र भर ऐसा स्वीपर नहीं देखा। आप क्या बाहर से ट्रेनिंग लेके आई है इसकी? ठहरे, मैं ज़ारा को बुलाती हूँ, वो तो मुझसे ज्यादा हैरान होती है ऐसी चीजें देखकर। देखिए आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है।
आप कहां से आई हैं? इंटरव्यू भी लेते हैं घर वालों का? वाह, इसका मतलब हम लोग मॉडर्न हो गए। मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आई हैं? लाहौर से सर। मेरा ख्याल है आनी आपसे यही कह के काम करवाती होंगी। मेरा मतलब है आप यहां क्यों आई हैं? रहने के लिए, अगर घर बच गया। मुस्तकिल या आरजी? मुस्तकिल फिलहाल। वैसे दिन में आप कितने गमले तोड़ते हैं? मैं जानता था, सामान देखकर ही समझ गया था मैं। अब आप तनख्वाह भी बढ़ाएंगे शर्तिया? मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। पुलिस में? क्यों? अरे वाह, सिर्फ एक कमरा ही तो ज्यादा झाड़ना पड़ गया। तो है ही एक, ना तो ना से ही अपना कमरा खुद सफा कर लेंगे। वैसे कितने पैसे लेंगे? हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। साफ जाहिर है काफी अमीर लग रहे हैं आप। वैसे आपका सामान किधर है? मेरा मतलब जैसे डॉक्टरों का मेडिकल बैग होता है ना, आपका भी झाड़ू वगैरह का कोई बैग होगा टोकरी के बजाय। जिस किस्म की फजूल और बेसरोपा गुफ्तगू आप कर रही हैं वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप यहां नहीं रह सकती। सुन लिया आपने? मैं लिख कर भेज रहा हूं। लिख कर भेजे? जी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? आनी ने तो कहा था पहले बाहर की सफाई करें फिर अंदर की सफाई कीजिएगा। बल्कि आज तो किचन भी बहुत ज्यादा सफा होगा। पागल है, पागल है। कहाँ है जमींदार? आनी, आपका जमादार तो बिल्कुल फिल्म स्टार लग रहा था, वो भी हॉलीवुड का। है कहाँ वो? चला गया, कहने लगा बहुत सारे लोग आ गए अब काम नहीं करेगा। चला गया बगैर सफाई किए? मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। ऐसे मत कहे, उसकी शान के खिलाफ है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं शहजादा गुलफाम से बातें कर रही हूँ। तुमने जरूर कोई ऊट पटांग बातें करके उसे भगा दिया होगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके आगे झुक के सलाम नहीं किया, उसकी टोकरी उठा के अंदर नहीं लाई, चाय को नहीं पूछा। बाय द वे आनी, यहाँ के जमादार 3 पीस सूट पहनकर चमकदार जूतों में आते हैं। ओह माय गॉड, कौन आ गया था? कौन आ गया था? आप ही ने तो कहा था कि जमादार आए। आनी जल्दी करें, देखें क्या हो गया, इसको बचाएं, खुदा का वास्ते से बचाएं, ये जल रहा है, इसको देखें क्या हो गया। वहां एक के बजाय 2-2 किराएदार मौजूद हैं। Oh no, not again. ना सिर्फ कि वो किराएदार हैं बल्कि बदतमीज भी हैं। उनको बात करने तक का सलीका नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो सब के सब पागल हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा एतराज किस बात पर है, बदतमीज होने पर, किराएदार होने पर, या पागल होने पर? ठीक है, अगर आपका यही रवैया है तो मुझे मजबूरन आपा बेगम को फोन करना पड़ेगा। है, आपा बेगम का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, उन्होंने मुझे यहां पर आपकी और इस घर की हिफाजत के लिए रखा है। तो इस घर को और मुझे क्या खतरा है सिवाय तुम्हारी तरफ से? खतरा है मेरी छठी इस कैद। बदबुद्दीन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई बात नॉर्मल, मेरा मतलब है आम सूझबूझ की कर लिया करो? आपा बेगम को फोन आप करेंगे या मैं? आपा बेगम को तकलीफ देने के लिए मैं आखिरी आदमी हूं। ओके। कुतुबुद्दीन, काश मैं तुम्हें समझ सकूं। हेलो हेलो, बंद कर दिया। या अल्लाह, इतने बेसब्र हो गए हैं लोग, चाहते हैं पहली घंटी पर कोई फोन उठा ले। मिस्टर और मिसेस इनायत की शादी पर 151 रुपए देना पड़े। इफ़ी मामू के बेटे को 100 रुपए देना पड़े। नायला पास हुई तो 100 रुपए देना पड़े।
मिसेस शौकत की बेटी की सालगिरह पर 50 रुपए का तोहफा। अरे इस तरह तो हर महीने 1500 की चपत पड़ जाती है। इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। ओ बुकरात, अरे देखना दरवाजे पर कौन है। बुकरात गायब हो गया कमबख्त। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इस कमबख्त का हफ्ते में 2 दिन सिनेमा देखना फर्ज है। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। तो ये तुम थे? वो क्यों घंटियों में घंटियां बजाए जा रहे थे? अंदर नहीं आ सकते थे? क्या हुआ? फरहान साहब, तुम परेशान क्यों? क्या हुआ फरहान को? अरे मुझे मालूम था उसकी सैरो तफरीह एक ना एक दिन मेरी जान ले लेगी। मुझे पता था। कहाँ हादसा हुआ है? किस अस्पताल में है? बेगम साहबा, मैंने कब कहा है कोई अस्पताल पहुंच गया है? हादसा हुआ है लेकिन इस नौयत का नहीं है। अरे मेरी आंख सुबह से फड़क रही थी। मुझे मालूम था आज कुछ ना कुछ होगा। अब आप जरा देर सब्र सुकून से अरे मेरी बात तो जहन्नुम में गया सब्र सुकून। मेरी जान पर बनी हुई है, तुम कह रहे हो सब्र सुकून। ये बताओ फरहान कैसे हैं? बेगम साहिबा, फरहान साहब को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उनको कुछ हो सकता है। वो अपनी स्टडी में बैठे कोई फजूल सी किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे? वो भी मेरे साथ? अब बावले तो नहीं हो गया कहीं? मैं खाती पीती कुछ नहीं हूँ, कमजोर हो गई हूँ। मेरा दिल चलते चलते बंद हो जाता तो? कुतुबुद्दीन, मैं 2 मिनट के नोटिस पर तुम्हें डिसमिस कर सकती हूँ, समझे तुम? बेगम साहिबा, आप मुझे बगैर किसी नोटिस के भी डिसमिस कर सकती हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। मुझे मजाक नाम से भी नफरत है। मैं इंतहाई संजीदा आदमी हूं, बिल्कुल संजीदा आदमी हूं मैं। अरे बैठो भी। ये बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? वो हमने किसी खातून को सिफारिश पर अपनी एनेक्सी किराए पर दी थी। हाँ? उन्होंने उसका एक कमरा मजीद 2 खवातीन को किराए पर चढ़ा दिया। क्या? जी, और वो भी नीम पागल किस्म की खवातीन। ओह माय गॉड, तुमने कुछ नहीं किया? ये मेरे इख्तियारात के हुदूद से बाहर है। फरहान ने भी कुछ नहीं किया? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ। फरहान साहब का तो ये हाल है कि अगर खुद उनके घर में 2 दर्जन लोग कब्जा करके सर्कस शुरू कर दें तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि कौन आ गया, बल्कि खुद उनके बेडरूम में अगर हाथी खड़े होने लगे तब भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन आके खड़ा हो गया। अरे इट इज टिपिकल ऑफ हिम। मैं फरहान को फोन करती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ और किसी चीज को छूना नहीं, समझे? चाहो तो ठंडा पानी पी लेना, लेकिन एहतियात के साथ। और चाय को इसलिए नहीं पूछूंगी कि चाय नौजवानों की सेहत के लिए बहुत मुज़िर होती है और बाद में लत पड़ जाती है। और आजकल मौसम इतना वाहियात हो रहा है कि शरबत तो पीना ही नहीं चाहिए। अब ये देखो, टेलीफोन जरूरी कामों के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो टेलीफोन की बेपनाह फजूल खर्ची होती है। जिसे देखो आया और घुमाने लगा नंबर, और वो भी बात करते हैं 20-20, 25-25 मिनट। तो वो है हेलो हेलो हेलो, खराब हो। मैं पूछती हूँ आखिर ये टेलीफोन वाले करते क्या है? बस बैठे हुए लंबे लंबे बिल पर बिल भेजते रहते हैं। अरे इस मुल्क में ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का मर्ज बढ़ते जा रहे हैं, और ये सब टेलीफोन की वजह से। टेलीफोन ना हो तो ये बीमारियां भी ना हो। ठीक है, मैं फरहान से सुबह जाके बात कर लूंगी, समझे तुम? अरे हटो, मैंने बात ना की तो सारा घर लुट जाएगा और उन्हें खबर भी नहीं होगी। मुझे इजाजत है बेगम साहब? हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस बस, मैं जानता हूं तुम दोनों जाग रही हो। उठो, जल्दी करो, तुम्हारी अम्मी नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, सोती रहो। मैंने तो सोचा था कि आज स्कूल में छुट्टी है, कहीं घूमने चलेंगे। स्कूल की छुट्टियां हैं अबू, घूमने कहाँ जाएंगे? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। उठो, तैयार भी होना है, नाश्ता भी करना है। देर हो रही है बेटे। स्कूल की छुट्टी नहीं है अबू। बेटे, आखिर कितने दिन छुट्टी होनी चाहिए स्कूल में? अबू आपने धोखे से क्यों जगाया? तो सो कौन रहा था? सो रहे थे और क्या? जी नहीं, जी नहीं। बेटे, स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? और पढ़ोगी नहीं तो बड़ी आदमी कैसे बनोगी? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। अरे तौबा, अगर मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो अब्बू तो बहुत रोएंगे। क्यों? बड़े आदमी के लिए क्यों रोएंगे? इसलिए
कि अब्बू का जी चाहता है कि ये जो दो नन्ही मुन्नी प्यारी सी शरीर सी बच्चियां हैं ना हमारे घर में, ये सचमुच की शहजादियां बन जाएं, इतना पढ़ लिख जाएं, इतना पढ़ लिख जाएं कि सारी दुनिया उन्हें सलाम करे, इतने बड़े सारे से महल में रहें, इतना बड़ा सा बाग हो और प्यारी प्यारी चुड़ियां उन्हें गाना सुनाने आया करें। और जब ऐसा होगा ना तो जानती हो क्या होगा? अम्मी और अब्बू बहुत खुश होंगे। क्या देख रही हो? दीवारों में क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जाग गई तुम? जाग तो गई हूं मगर जी चाहे सोती रहो। तुम देख क्या रही हो? कुछ नहीं, बस दीवारें हैं। सनिया, आने की घर की दीवारें ऐसे क्यों लगती हैं जैसे करीब आ रही, सुकड़ रही? इन्हें देखती हूँ ना तो मेरा दम घुटने लगता है। मेरा जी चाहता है कि क्या? तुम डांटोगी नहीं? नहीं। कि जोर से चीखे मार मार के रो कि दीवारें, जमीन और आसमान सब टूट फूट जाए, बस एक बार। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज टूट जाएगी और कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारा भी जी घबरा रहा है यहाँ? हाँ, बहुत। हम कहीं और नहीं जा सकते? मेरा मतलब है आनी को साथ लेकर। कहीं और जा सकते तो फिर यहाँ क्यों आते? हम कहीं नहीं जा सकते, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं किसी अच्छे वक्त का, या फिर इससे भी बुरे वक्त का। यही हमारे इख्तियार में है। और अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया। अरे बेटा, तुम दोनों को कितनी मर्तबा आके देख चुकी हूं मैं। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। वो जो मैंने पराठे बनाए हैं ना, वो तो पड़े पड़े मगरमच्छ की खाल जैसे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं खा सकेगा। और वो तर्रम खान जो है वो तो चाहता है कि कोई ना खाए। तौबा तौबा, ऐसा बदनीयत इंसान मैंने नहीं देखा। हाथी का मैदा है उसका, हर चीज हड़प कर जाता है। बहुत बुरी बात है बीबी, आप क्यों खफा रहती हैं उनसे? कितने बरसों से तो हैं वो आनी के पास। तो हुआ करें, मुझे तो जहर लगता है। कौवे जैसी तो शक्ल है उसकी, और वो भी चलाक वाला काला स्याह कौवा। जूरी बेटी को तो दुनिया जमाने का कोई खबर ही नहीं है। उसको तो दोनों हाथों से लूट रहा है उसे। कहाँ है बहुत बुरी बात है बीबी, अगर उन्होंने सुन लिया तो मैं डरती हूँ क्या उससे? अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को। तुम जरा उठ के जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। अच्छा, अब देर ना लगे। लगेगी तो अब तो लाइन लगेगी मुंह धोने के लिए बाथरूम के सामने। यार, भला मेरे घर में क्या तकल्लुफ है? अरे जरूर आओ और जितने चाहो लोगों को ले आओ, परवाह नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा करेंगे कि आपके शानदार शिकार का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, अदनान को, वसीम को बुला लेंगे। अरे नहीं, खर्च की परवाह ना करो यार। हाँ, खर्च की क्या परवाह है भाई? कानून का खजाना है, आते जाओ और लुटाते जाओ। अरे जानता हूं मैं गई आपा बेगम, तुम्हें किसी की फिक्र है? अगर फिक्र है तो अपने उन लफंगे दोस्तों की जिनको ऊपर दोनों हाथों से दौलत लुटाई जाती है। अरे इसी दिन के लिए बाप दादा ने मेहनत की थी, दोनों की रूहें तड़प रही होंगी तुम्हारी ये हरकतें देखकर। अच्छा वो अकबर, मैं बाद में बात करूंगा, इस पर बड़ा खतरा है। हाँ। इसीलिए तो शादी से इनकार किया जाता है। अरे कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी इन चूटियों भरे कबाब को? बेगम बहुत दिनों बाद आई बमबारी करने, जल्दी जल्दी आया कीजिए, वरना मैं सेल्फ डिफेंस की मशक भूल जाता हूँ। ये भी याद ही रहता कि सारन बजते ही कितनी जल्दी पनाहगाह में घुस जाना चाहिए। बैठिए। मैंने सुना है तुमने एक कमरा और किराए पे दे दिया। कुतुबुद्दीन को तो सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। कुतुबुद्दीन हर काम हमारी खैरख्वाही में करता है। काश वो कोई काम अपनी खैरख्वाही में करता ताकि आज वो और मैं चैन से रहते। अच्छा तुम ऐसा करो, वो खातून किराएदार जो है ना, उनसे जाके बात करो, उनसे कहो कि फौरन घर खाली करें। बेगम आप जानती हैं कि मुझे खवातीन से बात करने का कोई तजर्बा नहीं है। आप खुद सोचिए, मैं आप तक से हार जाता हूं। भगो मत, क्या मैं जानती नहीं तुम्हारी 10,000 खवातीन दोस्तों को? भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़कियां तो बर्दाश्त कैसे करती। हाँ भाई, रुपया बड़ी चीज है। दिस इज द पॉइंट। अब बेगम जो पैसा है ना, ये दुनिया की सबसे चार्मिंग और अट्रैक्टिव। मेरे पास सिर्फ 35 मिनट है, तुम अभी जाकर उन खातून से बात करके आओ। चलो। अगर आपा बेगम तमाम मामले कुतुबुद्दीन ने तय किए, वो क्यों नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं? अरे कुतुबुद्दीन नहीं बात कर सकता, तुम जाके बात करके आओ। चलो। ओके ओके, जाता हूं, मगर कहूंगा क्या? अरे जाते हो कि नहीं? ठीक है। कम इन, अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप?
जी वो दरअसल आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? जी नहीं, आपने इजाजत दी तो मैं। एक तो बेतकल्लुफी से घंटी पे घंटी बजा रहे थे, और जब मैंने अंदर आने को कहा तो मुंह उठाए अंदर भी आ गए, जैसे सड़क पर टहल रहे हो। आप जो कोई भी हो, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा घर है, चौराहा नहीं है। मोहतरमा मैं यहाँ रहता हूँ बराबर में। तो फिर जरूर कोई चीज उधार मांगने आए होंगे, और अगर ऐसा है तो आप गलत घर में आ गए। हमारे लिए चीजें कम होती हैं, उधार देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे शक्ल से आप मांगने वाले तो नहीं लगते। अच्छा, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। काम की बात करें, मेरा वक्त जाया नहीं करें। वैसे सबसे पहले ये बताइए आप हैं कौन? मोहतरमा जिस घर में आप रह रही हैं, इत्तेफाक से मैं इस घर का मालिक हूँ, और आपसे ये कहने आया था कि तो आप हैं इस घर के मालिक। तशरीफ रखिए माली मकान साहब। फारान कहते हैं। तो क्या मुझे अब ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ इस घर में कुछ और खवातीन भी रह रही हैं। तो क्या मतलब है आपका? ओ समझी, आप ये समझते हैं कि आपके इस चूहेदान को, जिसे आप बड़े फख्र से एनेक्सी या गेस्ट हाउस कहते हैं, मैंने मस्जिद किराए पे चढ़ा दिया। ये कहने आए थे ना? जी वो आप समझते हैं कि मैं इस साबुनदानी को मस्जिद किराए पे चढ़ाकर जर्मन जंगी कैदियों की यात्रा से करना चाहती हूँ? वो तो दुरुस्त है, मगर मुझे इत्तला मिली। अरे तो अपनी जाती अकल भी कोई चीज होती है। आपकी तो वही मसल हो गई जो हमारी नानी माँ कहा करती थी, कौवा ले गया कान तो कौवे के पीछे दौड़े, कान को देखा ही नहीं। आई एम सॉरी, अगर ऐसा है तो मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। नहीं नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो अपने इस बकनीम पैलेस को भी देख लेते हैं। जरा उठाएं, उठाएं सोफा। जी जी जी, उठाएं सोफा। उसके बाद कालीन उठाएं, फिर आप देखें कितने बड़े बड़े घड़े पड़े। और आप जरा इधर आए, तशरीफ लाइए, आइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी अच्छी है। ये मैंने इसलिए नहीं लगाई कि ये मुझे पसंद है, बल्कि जो दीवार में नक्शो निगार बने हुए ना, उनको छुपाने के लिए लगाई। बिजली अपनी मर्जी से चलती है, फर्श पर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, किसी घड़े में फंस कर गिर ना जाए। और आइए जरा बाथरूम में जाइए। जी जी चाहिए जी चाहिए जी। शावर खुल गया ना? जब हमें शावर खोलना होता है तो हम नलका खोलते हैं, और जब हमें नलका खोलना होता है तो हम पंखा खोलते हैं। मैं प्लम्बर को भेजता हूँ। अरे प्लम्बर से क्या होगा? बिजली वाला भेजिए, कारपेंटर भेजिए, सफेदी करने वाला भेजिए, और जरा जल्दी भेजिए। क्या है? वो फरहान साहब ना, वो एनेक्सी में से आ रहे हैं, बिल्कुल कपड़े उनके भीगे हुए और पसीना भी पोंछते जा रहे हैं। वैसे खैरियत से, खैरियत से। अरे वो मेरा जो भाई है ना, वो हर किस्म की गुफ्तगू कर सकता है सिवाय काम की गुफ्तगू के। तुम इंतहाई नामाकुल फिजूल इंसान हो। वो औरत हरगिज हरगिज इतनी खौफनाक नहीं है जितनी तुम बताते हो। वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। कौन यकीन करेगा? अरे उनके कहने से क्या होता है? वो कितनी भी मॉडर्न बने, शक्ल से तो गंवारी लगती हैं। और तोबा, इतने काले रंग पर जब गहरे हम ऐसी बातें करें ना तो डांटेंगी। खुद घंटे भर से बुराइयां कर रही हैं किसी की। आनी बस करे ना, 2000 का बिल आएगा। मेरी भांजी, अरे आओ ना किसी दिन, तिहट डार्लिंग। ओके यस करो, आनी की कितनी सहेलियां होंगी? कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 2000। बिल्कुल दुरुस्त। किसी ने कहा है कि जिसके जितने ज्यादा दोस्त होते हैं वो उतना ही अकेला होता है। ठीक है ये? ठीक भी है और गलत भी। असल में इंसान तो हर तरह से अकेला होता है, कोई साथ हो या ना हो, तन्हाई का एहसास अंदर होता है, बाहर नहीं। बाज लोग मजमे में भी अकेले होते हैं, बाज लोग अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। आपके बारे में क्या कहा जाता है? मेरे बारे में अर्ज है कि मैंने अपने दिल के अंदर बड़ा मजमा लगा रखा है, बड़ी रोशनी है, बड़ी रौनक है, और बाहर भी मैंने अपने इर्द गिर्द मेला लगा रखा है। तो इसलिए मेरी जान, मैं बिल्कुल अकेली। कभी दिल भी नहीं घबराता आपका? मैं और मेरा दिल दोनों एक साथ साथ चलते हैं, ना वो मुझे तंग करता है ना मैं उसे।
बाबा चाय कब आएगी? अरे ला रहा हूँ, ले आया। देखो अब ठंडी ना कर देना भाई, बहुत ज्यादा बातें करती रहती हो भाई। देखो ना 2 दफा दम कर चुका हूँ, और फिर इतनी चाय पीने की जरूरत भी क्या है? ताकि तुम्हें 2 दफा बनानी ना पड़े। आए 2 दफा चाय क्या बना ली, इसलिए नसीहतें करनी शुरू कर दी हैं। तुम्हें कितनी दफा समझाया कि बच्चियों को खाने पीने के लिए नहीं टोका करो, यही दिन है इनके। देखो ये हमारी बच्ची है, हमारा दिल चाहे टोके, हमारा दिल चाहे नहीं टोके। आए आगे अभी जुमा 8 दिन हुए इसको आए हुए, अपनी बच्चियां बना ली है इसने। जिंदगी अजाब में कर दी है। अभी कहाँ मिली है, अभी तो मिलेगी। खुदा का वास्ता क्या करती हैं आप? अरे बेटा मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो चुप हूँ। सनिया चाय बना। और तुम तैयार नहीं हुई, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? सॉरी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों? बस मुझे नहीं पढ़ना वहाँ। फजूल धूप में बस में लटकते हुए जाओ, रंग भी काला हो जाता है, बिल्कुल पाँव गंदे हो जाते हैं, और वैसे भी मेरा दिल नहीं लगता पढ़ने में। पढ़ोगी नहीं तो क्या करोगी? कुछ नहीं करूँगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। ना पढ़ने की वजह? पढ़ने से क्या फ़ायदा है? आंखें ख़राब हो जाती हैं, रंग झुलस जाता है, चेहरा लटक जाता है, बाल सफ़ेद हो जाए, बूढ़ी लगने लगूंगी मैं, फिर मुझे कौन पूछेगा, है ना बीबी? हाँ क्या बेटा, आए पढ़ने लिखने से तो मुई शक्ल दवात की तरह हो जाती है। आए मनो फिटकार, जैसे अल्लाह ना करे मिर्गी का मर्ज हो गया हूँ। जब बच्चियां पढ़ती लिखती नहीं थी तो कैसी मासूम भोली भाली खूबसूरत शक्लें होती थी उनकी, बिल्कुल परियों जैसी। और अब तौबा तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल पहाड़ी बकरियों जैसी शक्लें हो गई हैं बच्चियों की। बीबी तुम्हारी शक्ल अब पहाड़ी बकरियों जैसी हो गई। सच के जाऊं, मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, भला मैं तुम्हें ऐसी बात कह सकती हूँ? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। तुम क्या अखबार खिलाए बैठी हो, क्या देख रही हो? जॉब ढूंढ रही हूँ। अपने प्रैक्टिकल नहीं पूरे करने तुम? नहीं यानी प्रैक्टिकल वगैरह अब रहने दें, अब मैं जॉब करूंगी। पागल हुई हो, जॉब क्यों करोगी? लोग जॉब क्यों करते हैं, आप क्यों करती हैं? मैं तो इसलिए करती हूँ कि और क्या करूँ। और मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे करना चाहिए। चलो यहाँ तो सबका दिमाग खराब हो गया। मैं कहती हूँ कि नौकरी करने से बेहतर है कि सब अपनी शादियां करा दें, अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहें बस। मुकर्रर शाद। अरे बेटा तुम तो चुप रहो, तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलो। ये नौकरी कर कीड़ा जो है ना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में रहेगा था। अरे बहन बहनोई कहते कहते बेचारे हार गए, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी उनकी। अरे तुम्हें ऐसे रहते हुए अच्छा लगता है क्या? बीबी ठीक ही तो कह रही हैं, पढ़ने लिखने जॉब करने इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि सब शादियां कर लें, खूब अमीर आदमियों के साथ ऐश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। अरे जीती रहो मेरी बच्ची, कैसी आजकल की बात की है तूने। आई नजरें बद से बुझाए तुझे अल्लाह। तो बस तय हो गया, आनी, ज़ारा, मैं और बीबी सब शादियां करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। हाँ अस्तगफुरुल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरी शादी करोगी क्या? बेचारे बाबा अकेले रह जाएंगे, तो ऐसे करते हैं कि बीबी बाबा से शादी कर ले। बाबा बीबी बाबा से शादी कर ले? आई बीबी को किसी बाप ने कुत्ते ने काटा है जो उस लंगूर के साथ शादी करेगी? तो कैसी बातें कर रही है ये? अरे इससे तो बेहतर है कि बीबी अपने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ले। लिख रही हो? ये देखो कितनी लंबी लिस्ट है, ये सब जॉब्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। लोग खामखा कहते हैं कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है, देखो कितने खाली पड़े। सुनो, तुम सचमुच जॉब करोगी? झूठ मूठ कौन करता है? पैसों के लिए करोगी? ज्यादातर लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन तुम खास तौर पे इसीलिए करोगी ना कि मैं भी तो हूँ और मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, है ना? हाँ ये तो सही है कि तुम स्टूपिड हो, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें पता भी चल गया। जॉब मजबूरन मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो 24 घंटे तुम बातें कर करके मेरा दिमाग खराब कर दो, और मैं पागल होना नहीं चाहती, इसलिए अब आप सो जाओ। मेरा ख्याल है कि तुम दुनिया की सबसे फजूल बहन हो। थैंक यू। वैसे इतनी सारी जगह एप्लीकेशंस भेजोगी? मैं सोच रही हूँ सबसे पहले कहाँ भेजूं। ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं बताती हूँ, बस यहाँ भेज दो, पक्की बात। चलो ठीक है। अब मुझे ये फिक्र हो गई है कि कहीं तुम 2 तोते और एक ताश की गड्डी लेके फुटपाथ पे ना बैठ जाओ और लोगों का फाल निकालने लगो, तुम्हारा कुछ पता नहीं। ईमान से ज़ारा, अगर मैं 2 तोते लेके फुटपाथ पे बैठ के किस्मत का हाल बताने लगूँ ना तो लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, फिर मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि रोल्स रॉयस में बैठ के फुटपाथ जाया करूंगी। क्या हर्ज है?
वैसे तोते कितने में मिलते हैं? जाके सो जाओ तो। खैर सो तो जाऊंगी, लेकिन इतना बताओ कि खाली एप्लीकेशन भेजने से क्या होगा? जाना तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने होगा, और वहां तुम ऐसे जाओगी कि तुम्हारे हाथ पैर लरज रहे होंगे, जा कहीं रही होगी, कदम कहीं पड़ रहे होंगे, दांत बज रहे होंगे, और लोगों की शक्लें देखे ना तुम प्रॉम्प्टली 2 हिचकियां लेके तो जाओगी। खैर अब मैं इतनी डरपोक भी नहीं। अच्छा, आई एम ग्लैड। देखो अब तुम यूं करना कि यूं गर्दन अकड़ा के देवरी पे बल डाल के बहुत शाहाना अंदाज में दाखिल होना और ये कहना कि वेल सर, आई एम हियर एंड आई थिंक दैट आई एम द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। सर मेरा नाम ज़ारा अहमद है और जी ये मेरी एप्लीकेशन है। वो ऐसे तो तुम्हें क़यामत तक जॉब नहीं मिलेगी। जरा स्मार्ट कपड़े पहनो, मेकअप करो, बालों का कुछ करो। सनिया मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, कोई मॉडलिंग करने नहीं। फजूल बातें मत करो। जी नहीं सर, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं वक्त पे आने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी आंटी सुबह कॉलेज जाती है ना, तो वो मुझे छोड़ दिया करेंगी। अजीब हो तुम, इतनी देर कर दी। देर तो नहीं हुई क्या? मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम किसी न किसी बस, रिक्शा या टैक्सी के नीचे आ गई हो। सनिया फजूल बातें नहीं करो, इधर आओ ज़ारा, इधर आके बैठो। बीबी, बीबी, क्या बात है बेटा? बीबी चाय ले, ज़ारा आ गई है। अच्छा बताओ क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। कितने 1000 रुपए मिलेंगे? 1000 तो नहीं, बस कुछ मिल ही जाएंगे। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही? हो रही, बहुत हो रही। हमारी तो जिंदगी और मौत का सवाल था, भूखे मर जाते अगर तुम्हें नौकरी ना मिलती। आनी आप खफा हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी नालायकी और नाहली पर। उम्र भर में 2 भांजियां साथ रहने को आई तो उन्हें मैं कुछ खिला पिला भी ना सकी। आनी ये बात नहीं है। अब्बू ने एक मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत दुख उठाए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सब कुछ टूट फूट गया और वो वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। जिया, जिया, अब्बा कैसे? बिल्कुल ठीक, अभी तक उसी तरह बातें करती। और अंकल और आंटी? रहते कहाँ हो? भाई बड़ी पुरफजा जगह, समंदर के किनारे। लेकिन तुम लोग तो लाहौर में रहते थे, ये कराची कैसे आना हो? आनी के पास आए हुए। आनी? आनी कौन? आनी जुबी खाला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जुबी खाला। हाँ हाँ आनी। असल में 10-12 बरस के जो धागे बीच में खो गए हैं ना, उन्हें जोड़ कर देखते हैं कि किसने कितना सफर कैसे तय किया। पहले तुम बताओ। ये तुमने शादी तो नहीं कर ली मुझसे पूछे बगैर? जल्दी बताओ। नहीं। चलो ये भी अच्छा। वैसे भी अगर तुम कर भी लेती मेरे मशवरे के बगैर तो अब तक वैसे ही। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम 12 साल के बाद मिले। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ये बताओ तुम लोग वापस कब आए हॉलैंड से? भाई अब्बा तो रिटायर हो गए थे पहले, इसलिए वो जल्दी आ गए। मुझे आए हुए 1 साल हुआ। तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था, मैंने तो फातिहा पढ़ ली। बहुत जलील हो। अच्छा, अब जबान भी लग गई है। तुम वो वक्त भूल के जब उंगली पकड़ के तुम्हें चलाया करता था। सारी जिंदगी तो मैंने उंगली पकड़ के नहीं ना चलना था, खुद कभी ना कभी तो चलना सीखने का, तो सीख लिया। 2 बज गए, 10 बजे मैंने ऑफिस जाना था। आज मेरी जॉब का पहला दिन है। जॉब?
कौन सी जॉब? तो क्या सब कुछ पढ़ लिख लिया? बिल्कुल काबिल हो गई? हाँ, सब कुछ पढ़ लिख लिया। जिया, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं तो? मेरी तरफ देखो। मुझे तुम्हारी आंखों का रंग अच्छा नहीं लग रहा। 12 बरस में रंग तो खराब हो ही जाता है। जिया, अच्छा नहीं पूछता। ये बताओ, तुम्हारी वो विलायती बिल्ली जैसी बहन जिसे मैं पिंक पैंथर कहा करता, वो कैसे? क्या बात है? डरा दिया फजूल में। क्या कर रही हैं आप? इस तरह से दूसरों के घरों में चोरी चोरी बिला इजाजत घुसना कितनी बुरी हरकत है। शायद किसी ने बताया नहीं आपको। जी नहीं, इसलिए हमारे घर में इस किस्म का कोई ड्रैक्युला नहीं होता। आपकी तरबियत में यकीनन कोई ना कोई कमी रह गई है। और आपकी तरबियत में यकीनन बहुत ज्यादती हो गई है, और ज्यादती हमेशा खराब होती है। ये किसी ने नहीं बताया आपको? बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप किराएदार हैं और किराएदारों को अपने हुदूद में रहना चाहिए। आप न सिर्फ हमारे घर में इधर उधर घूम फिर रही हैं, बल्कि हमारी चीजों को तलाश भी कर रही हैं। आई एम रियली शॉक्ड। आपका मतलब है मैं चोर हूँ? चोर भी बिगड़े हुए इंसान ही होते हैं। देखिए, मुझसे बात करते वक्त जुबान पर जरा काबू रखिए, उससे मैं बुरा हासिल कर देती हूँ आदमी का। और मेरी भी एक बात सुन लीजिए, बराए मेहरबानी आप इस घर से जरा दूर ही रहा करें, समझिए आप। और सुनिए, मुझे आपसे बात करने का बिल्कुल शौक नहीं। सनिया बेटे, सनिया बेटे, तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हें सारे घर में तलाश करके आई हूँ। वो तो मुझे माली बाबा ने बताया कि तुम यहाँ हो। बीबी, मैं ये देखने आई थी कि अपने लिए तुम लोगों ने इतना अच्छा घर बनाया है, और हमारे लिए वो चुआदान। इन्होंने बनाया है घर? तो शर्म करो भाई। खैर बीबी, ये बनाते तो कोई बर्फानी गार ही बनाते। सनिया बेटे, देखो बेटे, ये अपनी बीबी को समझा लो, मैं बहुत ज्यादा जब्त कर रहा हूँ। इससे ज्यादा जब्त मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं किया था। तो मत करो जब्त। कौन कह रहा है जब्त करने को? खातून बहुत खुराफात बोलती हैं, आप जरा संभल के बात किया करें। सच्ची बात करती हूँ। ये क्या हो रहा है? आप यहाँ क्यों आए सबके सब? कोई खास बात नहीं है, हम लोग रोजाना ऐसी ही बातें करते हैं। तो फिर अपने घर में जाकर कीजिए। जी नहीं। देखो बेटे, ये कोई शराफत है? मैं बताता हूँ। देखो, मेरा जो क्वार्टर है, अब उसमें से मेरा सामान तो निकाल के बाहर फेंक दिया और अपना सारा सामान उसके अंदर रख के इतना बड़ा उसमें ताला लगा दिया, और फिर कहती है करना तो कर लो। भाई ये भी कोई धौस है, कोई धांधली है? मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं यहीं रहूंगी उसी क्वार्टर में, और तुम अपना इंतजाम कर लो। मैं क्यों कर लूं दूसरे क्वार्टर के में इंतजाम? देखो कोई बात है? बाबा, ये अच्छी धांधली है। बीबी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरा घर है और मैं इसमें रहूंगा। हाँ, था कभी तुम्हारा घर, अब मेरा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, मुकदमा हो रहा है। आप चुप रहिए। हाँ बाबा, बीबी, आहिस्ता आहिस्ता बताइए, आराम से। देखिए, बराए मेहरबानी आप ये सारा शोर शराबा अपने घर में जाकर कीजिए। जी नहीं, मुकदमा इसी इलाके में फाइल हुआ था, उसूल की बात है कि इसी इलाके में फैसला होगा। आप जाना चाहते तो जा सकते हैं। एंड एनीवे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक्सक्यूज मी, आप इस तरह दूसरों के घरों में जाकर हंगामा नहीं कर सकती। चुप रहिए, मैं हर जगह जाके हंगामा कर सकती हूँ। बोलिए बाबा। देखिए बीबी, बात यह है कि मेरा सामान जो बाहर पड़ा है वो खराब हो रहा है। अगर उसमें से कोई चीज जाया हो गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। आपने बाबा का सामान बाहर क्यों फेंका? तो तुम मुझसे सामान कहते हो? अब बेटा, मैंने तो समझा कि कूड़ा करकट है, मैंने बाहर फेंक मारा। आए सफाई कराया नहीं। अब तुम कहीं और कहीं जाके इंतजाम क्यों नहीं करते अपना? जाके किसी और जगह पर जाके रहूं, ये कोई बात है? मेरा घर है।
वही बात है, तुम्हारा घर है, आए इंतजाम कर लो कि नहीं करो, बाहर खड़े रहो। अदिता, अगर मैं वो सामान बेचना चाहती ना किसी ठेले वाले के हाथ, तो मुझे सिर्फ मुट्ठी भर रियोड़ियां मिलती खाली। देखिए देखिए, अपनी आंखों में जाके इलाज करा लो बीबी। इसको क्या कह रहे हैं, आंखों का इलाज करा लो? आए खुद कुत्ते और घोड़े के में फर्क तो नजर आता नहीं है तुम्हें? देखा आपने, देखो किसी झूठे ने कयामत वाले दिन अल्लाह मियां को जाके मुंह थोड़ दिखाना है। देखे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये? आपको क्या तकलीफ है? हमको यहाँ कोई मुस्तकिल रहने थोड़ी आई है। देखो दरअसल बात ये है ना, ये जल गए हैं। आज हंडिया मैंने जो पका ली है, आज जब से कराची आए हैं पेट भर के मैंने, मेरा मतलब है बच्चियों ने खाना नहीं खाया। क्यों पका लिया आपने हंडिया, क्यों पका लिया आपने? मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूँ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बेटी इनको समझा दीजिए। खुदा का वास्ता आप लोग चले जाए यहाँ से। आप अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर दें, और तब भी शोर है तो कानों में रुई डाल दीजिए। और ये सारा घर मैं आप लोगों पर छोड़ दूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। इतने बेवकूफ नहीं है। वैसे वो दूसरी बात है, डिबेटेबल। और वैसे भी मैं आपका घर उठा के कहीं लेके तो नहीं जा रही। वैसे आप किस किस्म की खातून है? मैं हर किस्म की खातून हूँ। अब बोलिए। हम जा रहे हैं। खुश खुश? हाय ज़ारा। हेलो। पहचाना? ओह माय गॉड, ये पिंक पैंथर है। कितना बड़ा हो गया, ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया होगा अब। कौन है? कौन है? ज़ैन। ज़ैन किंग कॉन्ग। मुझे तो ये किसी खतरनाक गिरोह के लोग मालूम होते। खुद सामने नहीं आते, खवातीन को सामने रखते हैं। और वो लड़की तो मुझे शुरू दिन से ही मशकूक लगती है। उसकी हरकत और सकनात से जाहिर होता है कि वो किसी बड़ी वारदात के चक्कर में। वैसे ये सब के सब लोग हैं बहुत चालाक। पता है क्या हुआ? जब मैंने उस लड़की को रेड हैंडेड पकड़ा तो एक बुड्ढा और एक बुड्ढी लड़ते हुए वहां मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आ गए। खुदाया, आखिर ये फारान उन्हें निकाल के बाहर क्यों नहीं करते भाई? नंबर 1, वो किराएदार खातून गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के पुरजोर इसरार पर वहां किराएदार रखी गई है। और वो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल एक जमाने में फारान साहब की बहुत दोस्त रही है। अरे भाई, दोस्ती का क्या है? फारान की दोस्ती तो इस शहर की क्या, इस मुल्क की हर पढ़ी लिखी लड़की के साथ होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर लुट जाए। नंबर 2 ये कि मैंने मुआहदा 2 साल के लिए लिखा है और उसका एडवांस भी वसूल कर चुका हूं। कभी कभी ज्यादा होशियारी गले का फंदा बन जाती है। और सुनो, तुम तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ही मत किया करो, समझे? वैसे मैं सोच रहा हूं कि खुफिया पुलिस को खबर कर दूं, वो खुद से छानबीन करे। वैसे भी इतने बड़े घर की हिफाजत मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी तो अपनी जान को खतरा है। सोच रहा हूं आज रात से मैं बंदूक सराने रखकर सोऊंगा। बंदूक? उसे उठाने के लिए बुलाओगे किसे? बहुत भारी होती है, तुमसे नहीं उठेगी। ठीक है, मैं पिस्तौल रखकर सो जाऊंगा। है? सचमुच? भाई मेरा मतलब ये है कि मैं तो नहीं समझती कि तुम पिस्तौल चला लोगे। अरे धमाका होता है, धमाका हुआ तो तुम कहाँ जाओगे और मेरा भाई बेचारा बेकार में फंस जाएगा। ठीक है, मेरा फर्ज था आपको बताना, मैंने बता दिया है। अमल करना अब आपका फर्ज है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। मेरे भाई की जानो माल को खतरा है? मैं यूं हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठी रहूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अभी 2 टोक बात करके आती हूँ। अरे छोड़ दो, बुखार कर देगा। गाड़ी लेके आओ। जी। मेरी गाड़ी ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं निकालती हूँ, मैं ताले लगाती हूँ। भाई देखो, एहतियात अच्छी चीज होती है, मैं हर चीज ताले में रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने नौकर पर एतबार नहीं करती हूँ, वो लाखों में एक है। अब देख लो, बावर्ची भी वही, माली भी वही, बटलर भी वही, ड्राइवर भी वही, स्वीपर भी वही। मैं तो 8-10 लोगों का खड़ा ही नहीं पालती हूँ, समझे? लेकिन वो आपका मुलाजिम है कहाँ? बाहर झाड़ पूछ कर रहा है। आज खातिन की क्लब की मीटिंग है, 1 डिश पार्टी है। अरे चलो भी। कौन ये सारे? सारे टूट गए? आई एम सॉरी मैम। ये तो बताओ कितने टूटे हैं, गिनो। मैम
टुकड़ों से तो अंदाजा हो रहा है कि 3 थे, लेकिन अब शायद एक भी बाकी नहीं बचा। ठीक है, इन गमलों के 40 रुपए मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से काट लिए हैं। और सुनो, ये 40 रुपए उनके अलावा है जो आज सुबह दूध जानों पर मैंने तुम्हारे काटे थे, समझे? मैं डायरी में लिख लूंगी, समझ गए? जी, एज यू विश मैम। और सुनो, मैं थोड़ी देर को बाहर जा रही हूँ, तुम यही रहना, 1 मिनट के लिए कहीं मत जाना, समझे तुम? मुनासिब। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ क्या आप इनके साथ जा रही हैं? हाँ तो क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं, कहने में क्या हर्ज है? जाओ। स्टोर की चाबी, फ्रिज की चाबी, किचन की चाबी, मुख्तलिफ बर्तनों के अलमारी की चाबी, और ये रही टेलीफोन की अलमारी की चाबी। अरे खुल जा भाई। हेलो सर, बुकरात है। वो रवाना हो चुकी हैं? जी हाँ, अपने पालतू के साथ। बड़ी देर से सोच रहा हूं कि कुछ कहूं, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे, या मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। शायद तुम लोग भी कुछ सुनना ना चाहो। कुछ मत कहो। एक बात जरूर कहूंगा कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उनकी याद आए या उनका जिक्र आए तो खुशी होती है, गम नहीं होता। क्योंकि जो अपने होते हैं वो चाहते हुए अपना एक हिस्सा हमारे पास छोड़ जाते हैं और हमारा एक हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। तभी तो जाने के बाद और ज्यादा करीब हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अब आनी को कोई तंग नहीं करेगा। आनी, आप फिक्र ना करें, इन दोनों को तो मैं सुधार लूंगा। ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि इन दोनों ने आपकी जिंदगी हराम कर दी होगी, खासतौर पे इस पिंक पैंथर ने। अरे वाह, मैंने क्या किया? खबरदार जो किसी ने बुराई की हो मेरी। देखा देखा देखा, कितनी जल्दी पंजे निकालती। बचपन में एक दफा तुम्हारा मुंह नोचा था, भूलना मत। जी नहीं,